state that the various steps involved in the allocation of the partition in a case of the fixed partition memory management. तो दोस्तों ये 2002 2002 2005 2006 2007 कंटिन्यूसली पूछा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम मार्क करके रखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. When a process is be located at a partition following take place, the long-term process scheduler of a PM devices which process to be brought into the memory. If the find out the size of the program to be loaded by the consulting the IM portion of the OS, the compiler keeps the size of the program in the header of the executable table or executable file. The makes a request to a partition allocate routine of the to allocate of a free partition with the appropriate size. The partition description table is useful for the producer. तो आपको ये 3 या 4 पॉइंट इसके लिख के आना है. ये 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट लिख के आना है इसके, उसमें आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है. The routine in the now redefines the partition description table and marks the status of the partition as located. ये आपके 3-4 पॉइंट्स करके ही जाना है. टेबल अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसका कोई काम नहीं है अभी. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्चुअल मेमोरी इन अ ब्रीफ. वर्चुअल मेमोरी एक्सप्लेन करना है. वर्चुअल मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी इज अटेम्प्ट विच Virtual memory is an attempt with the execution of the process possible which may be completely not in the main memory. Some part of the process may be on disk. कुछ पार्ट उसके मेमोरी में रहता है और कुछ पार्ट इनका डिस्क में रहता है. जैसे कि आप मेन पॉइंट लर्न कर देंगे तो आपको पूरा पॉइंट लर्न हो जाएगा. इसके भी 3-4 पॉइंट लर्न कर लीजिए. The techniques are simple to implement, but the major drawback is that if the physical memory is limited, then the number of the process it can be hold at any time. Degree of a multi-programming reduces. The concept of a virtual memories is to introduce. The main advantage of the virtual memory is that the user can execute program whose size may be greater than the physical memory. जो ऐसा साइज जो फिजिकल मेमोरी से बड़ा हो. जैसे कि आप सिर्फ इतना ही लर्न करने से आपको ये पॉइंट पूरा लर्न हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ मेन पॉइंट आप लर्न कर लीजिए, उससे आपको पूरा लर्न हो जाएगा. अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ लॉजिकल और वर्चुअल पेजेस. टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, सम ऑफ द पेजेस आर लोडेड इनटू अ स्पेसिफिक पेज फॉर्म्स. आप इसकी भी 3-4 पॉइंट लर्न कर सकते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. जनरेट वर्चुअल मेमोरी इज रिलेटेड टू अ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो 3-4 कॉन्सेप्ट है इसमें, ज़्यादा है, 6 कॉन्सेप्ट है. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है लोकेलिटी ऑफ अ रेफरेंस. इन अ लोकेलिटी ऑफ अ रेफरेंस इट forecast whether a page is likely to be referenced in a near future or not, depending on a behavior in past and hence may be removed from a memory. अब इसके 6 अपने को डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, तो सिर्फ ये 6 पॉइंट लर्न आप लिख के भी आ जाएगा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं. या डर्ट पेज डिमांड पेज, या आप 6 पॉइंट लिख के भी आ सकते हो तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं. अब वर्किंग सेट. द वर्किंग सेट ऑफ द पेजेस इज अ memory which are actively referred to at any fault movement. It's called a working set. The working set help to decide page to replacement policy. और एक हेल्प करता है डिसाइड करने में पेज में रिप्लेसमेंट पॉलिसी के लिए. पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. इफ देयर इज अ नो पेज फ्रेम इन अ मेन मेमोरी टू accommodate a new page, the OS overwrites some exist page. These pages are determined by a page of replacement policy. Dirt page. Dirty page. A dirty page is modified after it is loaded in a main memory is called a dirty page. Demand pegging. In a demand pegging, a page is loaded in a memory only when its demand. वो लोड होता है मेमोरी में जब उसकी डिमांड रहती है तभी वो लोड होता है. इसे कहते हैं डिमांड पैगिंग. आप ये पूरे पॉइंट्स रन करके जाइएगा. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज़ अ GUI? स्टेट एनी 4 एडवांटेज ऑफ GUI. GUI is the interference which replace cryptic command by their graphical representation are called a graphical user interference. GUI का फुल फॉर्म क्या है? graphical user interference. Window operating system in a GUI based on operating system. जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI का, वो बेस्ड किसके ऊपर है? ऑपरेटिंग सिस्टम के. अब चलिए एडवांटेज ऑफ GUI देखते हैं. With a GUI, commands are replaced by graphics, hence it's not necessary to remember the command and its mean.
when with GUI user can run several programs simultaneously. मतलब GUI साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकता है. यूज़र कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा बिटवीन प्रोग्राम विद ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अ कॉपिंग फाइल. यूज़र एक्सचेंज या ट्रांसफॉर्म कर सकता है फाइल विद द हेल्प ऑफ अ कॉपिंग फाइल. ईजी टू यूज़ कंसिस्टेंट GUI और वर्चुअल और प्रोग्रामिंग. तो आप इसके पूरे एडवांटेज वगैरह सब लर्न करके जाइएगा, ये बहुत ही ईजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज़ द मीन बाय अ GUI? व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ GUI? एनी थ्री. GUI द इंटरफेरेंस बिटवीन रिप्लेस, ये वही एग्जांपल है जो अपने पहले देखे थे. एसेंशियल कंपोनेंट देखते हैं. एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, कंट्रोल पुश बटन, ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, एंट्री बॉक्स, डायलॉग बॉक्सिंग, फीड पॉइंटर, मेन्यू बार. आप इसमें से कोई भी पॉइंट लर्न कर लिए, सब चलता है. मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार में से एक एक पॉइंट, जैसे स्क्रॉल बार में से एक पॉइंट लर्न कर लिए, डायलॉग बॉक्सेस में से एक पॉइंट लर्न कर लिए, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. तो मेन्यू बार आर नॉर्मली अपीयर एट द टॉप ऑफ द विंडो अंडर द विंडो टाइटल. जो मेन्यू बार है वो नॉर्मली टॉप ऑफ द विंडो पे अवेलेबल रहती है. स्कोर बार आर अलाउड टू यूज़र टू स्क्रॉल द विंडो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. जो स्क्रॉल बार का यूज़ क्या है? वो विंडो को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं. डायलॉग बॉक्स इज अ विंडो यूज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द इंटरेक्ट विद द यूज़र. डायलॉग बॉक्स इन अ विंडो यूज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द इंटरेक्ट विद द यूजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्टेड टू GUI. टाइटल बार अपीयर एट द टॉप ऑफ द विंडो. टाइटल बार शो द टाइटल ऑफ ईच विंडो. टाइटल हेल्प टू आइडेंटिफाई ईच विंडो सेपरेटली. टाइटल क्या करता है? अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप में रहता है. टाइटल बार शो द टाइटल ऑफ द ईच अदर. टाइटल बार शो करता है सबके टाइटल. टाइटल हेल्प टू आइडेंटिफाई ईच विंडो सेपरेटली. टाइटल क्या हेल्प करता है कि विंडो को सेपरेटली अंडरस्टैंड करने में. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में. डिफाइन सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी. Security is connected with the ability of the operating system to enforce control over the storage and the transportation of a data is and between the object that operating system supports. इसके भी आप 3-4 पॉइंट लर्न कर सकते हैं. और जैसे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज़र प्रोग्राम शुड नॉट इंटरफेरेंस विद वन अनदर और विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर द 3 मेन एलिमेंट सिक्योरिटी. दिस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये आपको लर्न करके जाना है. ये लास्ट वाला पॉइंट लिख दिया तो एग्जामिनर के इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा. Confidently ensure that the information is not accessed in an unauthorized manner. It's generally related to the read operation. Integrity ensure that the information is not abandoned or deleted by an unauthorized manner. It's generally related to a write operation. Availability, it ensures that the information is available on the authorized user at a right time.